Today we will start section 33AB and section 35ABB. Okay, section 33AB and section 35AB in respect to corporate tax planning. How these sections helpful in corporate tax planning? Today we will discuss it. Totally, this section is belongs to particular industry. It is not belong to all industries. Section 35AB belongs to tea, coffee and rubber industries, and section 35ABB belongs to telecommunication industries. Many those who are engaged in telecommunication service. So today we will start with section 33AB. Okay. Section 33AB, we can read it with rule 5AC. Okay, this section is especially for tea, coffee and rubber growing and manufacturing business. Okay, so first of all, already I am telling about you that this section is belong to tea, coffee and rubber industry. So this section is applicable to all SSC who are carrying business of growing and manufacturing. What? Growing and manufacturing of tea, कॉफी एंड रबर. टी, कॉफी और रबर. टी, कॉफी और रबर के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है. सेक्शन 33AB is applicable for tea, coffee and rubber. So first of all, you have to think that whether it is belong to tea, coffee or rubber, then this section will be applicable. Otherwise, this section will not applicable. Next, what are the condition to claim the deduction? To claim the deduction under this section, what are the condition you have to satisfy? हम लोगों को कौन कौन सा condition satisfy करना होगा, ये हम लोग को learn करना होगा या दिमाग में रखना होगा. Basically, you can keep in your brain so that you can able to solve the problem. What are the conditions? Number one condition is there, deposit of amount. Money, if you want to claim this deduction, if you want to claim this special deduction, then you have to deposit some amount. Where this is amount is called special amount. Okay. दिस इज कॉल्ड स्पेशल अमाउंट. इसको हम लोग स्पेशल अमाउंट बोलते हैं. पहला क्या होगा, एसएससी मस्ट डिपोजिट टू रिफर्ड एज स्पेशल अकाउंट या स्पेशल अमाउंट. ठीक है, अकाउंट इन किस में डिपोजिट करेंगे? नंबर वन, नबार्ड में डिपोजिट करेंगे. वी विल डिपोजिट इन नबार्ड अकाउंट. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम आइदर अप्रूव बाय द टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड और एज द केस में बी. यानी हम लोग को अगर इसमें डिडक्शन चाहिए तो हम लोग को कुछ अमाउंट, वट एवर मे बी योर अमाउंट, यू हैव टू डिपोजिट इन नबार्ड अकाउंट or any other account which are specially for the this scheme. ये स्कीम का अप्रूव किया हुआ द टी बोर्ड और द कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड अप्रूव किया है, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का माने इफ यू आर डिपोजिटिंग नबार्ड देन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू आर डिपोजिट इन एनी स्पेशल अकाउंट, ठीक है, then you have to take the prior approval of central government and that account should be approved by the tea board, coffee board or rubber board. Otherwise you will not get the deduction. So पहला कंडीशन यही है कि तुमको कुछ पैसा जमा करना होगा. किस अकाउंट में? स्पेशल अकाउंट में जमा करना होगा. जो नबार्ड में भी जमा कर सकते हो और अदर एनी स्पेशल अकाउंट which must be prior you must get a prior approval of central government as well as it must be approved by a scheme of tea board, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड. तो ये पहला कंडीशन है. इफ यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन यू विल गेट द स्पेशल डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB. नेक्स्ट कंडीशन क्या? टाइम ऑफ डिपॉजिट. पहले तो हम लोग को डिपॉजिट करना, ये पता चल गया कि क्या डिपॉजिट करना, किसमें डिपॉजिट करना, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना, वो कोई रूल नहीं है, तुम जितना भी डिपॉजिट कर सकते हो. बट टाइम ऑफ डिपॉजिट वेरी वाइटल. व्हेन यू शुड डिपॉजिट, अगर तुम टाइम के बाद डिपॉजिट करोगे तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या है? द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट विद इन 6 मंथ. 6 महीने के अंदर तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. सपोज योर प्रीवियस ईयर एंड ऑन 31st March 2020 or suppose 21, 31st March 2021 your previous year is 1920, then I am dealing with 1920. okay, 31st March 2020, then within 6 month, यहाँ से 6 महीने काउंट कर लो. यहाँ से 6 महीने के अंदर तुमको जमा करना पड़ेगा. यानी 30/9/2020 के अंदर में तुमको पैसा जमा करना पड़ेगा. और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर, या ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम. ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम क्या है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम? एज यू नो, एनीवन नो? ओके, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम क्या है? अगर नॉन ऑडिटेड है
तो 31 जुलाई, और ऑडिटेड अगर है तो 30 सितंबर। ओके, और ऑडिटेड अगर है तो 30 सितंबर है। ठीक है, तो यानी तुमको या तो तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर के बाद 6 महीने के अंदर जमा करना होगा, या तुम्हारा ड्यू डेट जो है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न का, तुम्हारा ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है तो तुमको 31 जुलाई के अंदर जमा कर देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ड्यू डेट 30 नवंबर भी होता है, किसी किसी केस के लिए 30 स्पेशल केस के लिए 30 नवंबर भी ड्यू डेट है, तो उस केस माने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जब तुम्हारा इनकम टैक्स का ड्यू डेट है रिटर्न जमा करने का, या उसके उस दोनों में से जो भी पीरियड अर्लियर होगा, दैट विल बी योर टाइम ऑफ डिपॉजिट। यानी तुमको ये अमाउंट इतने महीने के अंदर में डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। सो पहला कंडीशन था अमाउंट डिपॉजिट करना, दूसरा कंडीशन है 6 महीने के अंदर डिपॉजिट करना, या विद इन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट से पहले जो भी अर्लियर आएगा वही। नेक्स्ट कंडीशन क्या, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी एक कंडीशन है कि तुम्हारा ऑडिट होना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अकाउंट्स ऑफ ऑडिट, माने ऑडिट नहीं है तुम्हारा, देन यू विल नॉट गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB। यानी 33 AB का डिडक्शन तुमको तभी मिलेगा जब तुम उस अकाउंट्स को ऑडिट कराओगे, अदर ऑडिट नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगा। दैट मींस अकाउंट्स शुड बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा एंड ही विल गिव हिज ऑडिट रिपोर्ट इन 3AC में अपलोड करेगा 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी 3AC में अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुम कोई और अदर एक्ट में, इन केस वेयर द SEC इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, अगर तुम किसी और लॉ में अपना अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट योर अकाउंट ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, देन यू कैन ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन, बट you must have to furnish the report in form 3AC। तो हम लोग क्या क्या सीखे, what are the conditions, हम लोग क्या क्या सीखे। नंबर 1 कंडीशन, तुमको स्पेशल अकाउंट में जमा करना होगा पैसा। ओके, नंबर 2 कंडीशन, टाइम ऑफ डिपॉजिट। टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिस दिन तुम्हारा एंड हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर जमा करना होगा, या फिर ड्यू डेट ऑफ furnishing the return of income, due date of furnishing the return of income, whichever is earlier। due date of furnishing of return of income basically for non audit क्या होता है 31 जुलाई, for audited किसका होता है 30 सितंबर, but in some cases there is also 30 नवंबर। so या तो ड्यू डेट से पहले या 6 महीने, यानी बेसिकली देखा जाए तो 30 सितंबर तुम्हारा बेसिक टाइम पीरियड है, क्योंकि whichever is earlier बोला है। तो अगर तुम्हारा इनकम टैक्स का रिटर्न का ड्यू डेट अगर 30 सितंबर के बाद भी आता तो तुमको 30 सितंबर तक जमा कर देना होगा स्पेशल अकाउंट, और तुमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑडिट, देन यू विल नॉट गेट दिस डिडक्शन। यानी तुमको अगर ये डिडक्शन लेना है तो यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही विल फर्निश द रिपोर्ट इन फॉर्म 3AC। फॉर्म 3AC अपलोड करेगा 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यानी 1 महीने पहले, ड्यू डेट के 1 महीने पहले वो फॉर्म 3AC अपलोड कर देगा। देन यू कैन क्लेम डिडक्शन इन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। जब तुम रिटर्न फाइल करोगे तब तुम ये डिडक्शन ले सकते हो। और क्या बोले थे, अगर को SSC को, इफ SSC रिक्वायर्ड टू गेट इज अकाउंट अंडर एनी अदर लॉ, अगर कोई अदर लॉ में भी उसको अकाउंट्स को ऑडिट कराना है, जैसे कंपनीज एक्ट में कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए कराना ही पड़ता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन दैट केस ही विल आल्सो गेट दिस डिडक्शन, बट he must furnish the report in form 3AC। that means the auditor should furnish the report in form 3AC, otherwise you are not liable for deduction। वरना तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, you will not get the deduction। okay, next, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। तो पहले हम लोग क्या किए, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि क्या कंडीशन था सेटिस्फाई करने का, यानी कंडीशन 3 ही कंडीशन था, टाइम ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करना है, टाइम ऑफ डिपॉजिट 6 महीने के अंदर या ड्यू डेट ऑफ फंडिंग, और तीसरा क्या था, अकाउंट्स ऑडिट होना चाहिए। जब ये हो गया तो हमको कितना डिडक्शन मिलेगा, हाउ मच डिडक्शन शुड वी गेट, कितना डिडक्शन हमको मिलेगा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, हाउ मच डिडक्शन शुड आई गेट, कितना डिडक्शन मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्लॉज है, उसके दोनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वही तुमको डिडक्शन मिलेगा, दैट यू विल गेट द डिडक्शन। पहला क्लॉज क्या है, अमाउंट सो डिपॉजिट, माने जो भी हम लोग स्पेशल अकाउंट में जमा करेंगे, जितना अमाउंट हम लोग स्पेशल अकाउंट में जमा किया वो, या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस,
40% ऑफ प्रॉफिट। 40% ऑफ प्रॉफिट माने 40% ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का 40%, बिजनेस इनकम का कितना 40%, 40% ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का 40%, लेकिन याद रखना बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, ये डिडक्शन से पहले, एंड बिफोर एडजस्टिंग एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, यानी बिजनेस इनकम से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस करने से पहले ये डिडक्शन तुमको मिल जाएगा। लेकिन ये डिडक्शन से पहले जो प्रॉफिट है उसी को ही बिजनेस प्रॉफिट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी 40% बिजनेस प्रॉफिट और अमाउंट डिपोजिटेड विच एवर इज लोअर। 40% of business income or amount deposited whichever is lower will be your deduction under section 33AB। यानी 33AB में हमको क्या डिडक्शन मिलेगा, या तो जितना हम अकाउंट स्पेशल अकाउंट में जमा किए वो डिडक्शन मिलेगा, या फिर what we will get we will get deduction of 40% of profit whichever is lower। we will get deduction of 40% of profit whichever is lower। so hope it is clear to you। next, restriction on utilization of amount for certain purpose। अब वो जो पैसा हम स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं उस पैसे को हम लोग यूटिलाइज करना होगा। यू हैव टू यूटिलाइज इज एज पर द स्कीम, उस स्कीम के तहत यूटिलाइज करना होगा। लेकिन अगर तुम उस स्कीम के तहत यूटिलाइज नहीं करोगे देन योर डिडक्शन विल बी विथड्रॉन, तब तुम्हारा डिडक्शन क्या होगा, विथड्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है वो बताएंगे। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन गिवन दैट वी शुड नो। पहला क्या है, नो डिडक्शन shall be allowed in respect of any amount being credited in special account utilized for the purpose of। यानी अगर तुम स्पेशल अकाउंट का अमाउंट को अगर इस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हो तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट डिडक्शन। यानी स्पेशल अकाउंट में तुम क्या क्या चीज का डिडक्शन पे नहीं मिलेगा। पहला, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमिसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस। यानी कोई भी प्लांट मशीनरी अगर तुम अपना ऑफिस में लगाते हो या फिर तुम कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन माने डायरेक्टर के रेसिडेंट में लगाते हो या फिर कहीं और लगाते हो या कोई गेस्ट हाउस में लगाते हो तो तुमको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी वो डिडक्शन तब वो स्पेशल पर्पस में नहीं आएगा, यानी वो स्पेशल अकाउंट का पर्पस नहीं फुलफिल करेगा। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ एनी ऑफिस अप्लायंसेस। अगर उस पैसे से स्पेशल अकाउंट का पैसे से तुम अगर कोई ऑफिस अप्लायंस खरीदते हो तो नहीं मिलेगा। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस का इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर पे मिलेगा। यू विल गेट डिडक्शन फॉर कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस में कंप्यूटर आता है। क्लियर। स्पेशल अकाउंट का पैसा को कहाँ डिपोजिट करेंगे माने कहाँ यूटिलाइज करेंगे ये बता रहा है, वेयर वी शुड यूटिलाइज। ओके। नेक्स्ट, purchase of any plant or machinery the entire cost of which allowed as deduction in the form of depreciation or otherwise in one previous year। अगर कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं जिसमें फुल 100% डिडक्शन मिलता हो या जिसमें कोई अदर डिडक्शन मिलता हो 100% का, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया व्हाटएवर, ठीक है, सेक्शन 35 में, तो वो प्लांट मशीनरी पर तुमको ये डिडक्शन फिर ये स्पेशल अकाउंट में एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। यानी माने बोलने का मतलब है स्पेशल अकाउंट का पैसा को हमको उस स्कीम के तहत यूटिलाइज करना होगा मशीन परचेस करने के लिए, लेकिन मशीन जो परचेस करेंगे वो मेरा यूटिलाइज जो होगा वो किस पर्पस पे नहीं होना चाहिए, ऑफिस पर्पस पे नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल पर्पस पे नहीं होना चाहिए और गेस्ट हाउस में नहीं होना चाहिए और ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर पे यू विल गेट। और कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिस पर तुमको फुल डिडक्शन या फुल डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो उस पर भी ये अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होगा यूटिलाइजेशन। और दूसरा क्या है, प्लांट ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आइटम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 11 ऑफ द एक्ट। शेड्यूल 11 में बहुत आइटम्स दिया हुआ, उसके लिए अगर कोई प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हो तो तुमको नहीं मिलेगा, यू विल नॉट अलाउड फॉर यूटिलाइजेशन। यानी इसका यूटिलाइजेशन तब अलग हुआ, इट इज विल बी मिस यूटिलाइज। यानी स्पेशल अकाउंट में पैसा रख देने से ही नहीं होगा, स्पेशल अकाउंट का पैसा को तुमको यूटिलाइज करना होगा। और वो यूटिलाइज का पर्पस क्या होगा, वो यूटिलाइज का पर्पस होगा प्लांट मशीनरी खरीदना या उस स्कीम के तहत जहां पर यूटिलाइज करने के लिए बोला गया उसमें यूटिलाइज करना। लेकिन याद रखना ये सब में अगर परचेस करते हो तो तुमको वो मिस यूटिलाइज माना जाएगा और वो तुम्हारा डिडक्शन विड्रॉन हो जाएगा। दैट डिडक्शन शुड बी विड्रॉन, उसको हम लोग क्या मानते हैं, मिस यूटिलाइज मानते हैं, एंड दैट डिडक्शन शुड बी विड्रॉन। वो डिडक्शन क्या होगा, विड्रॉन हो जाएगा। यानी रेस्ट्रिक्शन दिया, देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सर्टेन पर्पस, यानी रेस्ट्रिक्शन है, देयर आर रेस्ट्रिक्शन। ओके। नेक्स्ट,
विदड्रॉन फ्रॉम अकाउंट, जो अभी हम बात कर रहे थे, अगर तुम पैसा को मिस यूटिलाइज करते हो या अनयूटिलाइज करते हो, इफ यू आर मिस यूटिलाइजिंग, अगर तुम मिस यूटिलाइज कर रहे हो, मिस यूटिलाइज या फिर अनयूटिलाइज्ड, ओके, मिस यूटिलाइज कर रहे हो या अनयूटिलाइज कर रहे हो, देन that amount, that deduction will be withdrawn in that previous year. उस previous year में वो deduction क्या होगा, withdrawn हो जाएगा. That means it will be taxable as business income. तब वो उसी year में business income बोल के taxable हो जाएगा. कैसे, ये देखो. तो यहाँ पर दो केस है. ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस अभी भी कंटिन्यू हो, या हो सकता है तुम्हारा बिजनेस क्लोज हो गया हो सकता है ये डिडक्शन ये डिडक्शन लेने के बाद 2 साल के बाद तुम्हारा ये बिजनेस क्लोज हो गया और तुम्हारा स्पेशल अकाउंट में पैसा पड़ा है, देन व्हाट विल बी द केस. तो इसीलिए दो पार्ट करेंगे इसमें. ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस माने क्या हुआ कि बिजनेस करने के समय अगर मेरा डिडक्शन मिल रहा है तो आई एम गेटिंग द डिडक्शन, ओके. तो क्या होगा, द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच स्पेशल अकाउंट शैल बी विड्रॉन ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन रेस्ट्रिक्टिव स्कीम. उस स्कीम के तहत ही पैसा निकालना पड़ेगा. अगर उस स्कीम के बाहर से कोई पैसा निकालते हो तो वो विथहेल्ड हो जाएगा, विथड्रॉन हो जाएगा. इफ द अमाउंट सो विथड्रॉन इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस इन द सेम प्रीवियस ईयर, वर्ड को अच्छा से पढ़ना, देन द अमाउंट नॉट सो यूटिलाइज शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट ईयर. जैसे तुम मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, स्पेशल अकाउंट में 25 लाख रुपया जमा किए हो और 25 लाख रुपया जमा किया. अब 25 लाख को क्या कर रहे हो, 25 लाख में से 15 लाख रुपया तुम विड्रॉन किए हो, 15 लाख विड्रॉन कर लिए, ओके. 15 लाख विड्रॉन किए तो 15 लाख में क्या किया, 10 लाख तुम प्लांट मशीनरी में खरीदो जो स्कीम में है, और 2 लाख रुपया तुम मिस यूटिलाइज किए हो, और 3 लाख रुपया तुम यूटिलाइज नहीं कर सके. 3 लाख रुपया अनयूटिलाइज हुआ, अनयूटिलाइज्ड. That means ये 5 लाख के ऊपर में, 5 लाख के ऊपर में तुमको टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस इनकम कहलाएगा. समझ में आया? इट विल क्लियर और नॉट. माने जिस ईयर में जितना पैसा निकालोगे स्पेशल अकाउंट से, अगर इस साल में जितना पैसा निकालो वो उसी साल में यूटिलाइज कर लेना पड़ेगा. जैसे ही विड्रॉन कर लिए, दैट मीन्स इट शुड बी यूटिलाइज फॉर दैट स्कीम. उस स्कीम में जो भी लिखा हुआ है उस पर्पस पे यूटिलाइज होना पड़ेगा. अगर उस पर्पस के बाहर करते हो तो उसको मिस यूटिलाइज बोला जाएगा, और अगर नहीं कर सके तो उसको बोला जाएगा अनयूटिलाइज्ड. तो मिस यूटिलाइज और अनयूटिलाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द इनकम ऑफ दैट ईयर. उसी ईयर के इनकम में उसको हम लोग टैक्सेबल कर लेंगे. दैट इज क्लियर. उसी ईयर के इनकम में हम लोग उसको क्या कर लेंगे, टैक्सेबल कर लेंगे. इट विल बी टैक्सेबल इन दैट पर्टिकुलर ईयर. नेक्स्ट, ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस. अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया और तुम्हारा स्पेशल अकाउंट में पैसा रह गया, तब क्या करोगे, देन व्हाट विल हैपन. तब तो अब तुम यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज योर बिजनेस इज क्लोज्ड. तुम्हारा बिजनेस क्लोज हो गया. देन व्हाट यू विल डू ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस में क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्पस स्कीम द अमाउंट डिपोजिटेड मे बी विड्रॉन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकता है उसमें तुम इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो. क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, क्लोजर ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस क्लोज हो गया, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. मैंने जितना अमाउंट विड्रॉ करोगे वो फुल्ली, क्योंकि स्पेशल अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको तो तुम अब निकालोगे तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. तुमको उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा. डिसोल्यूशन ऑफ फार्म. अगर फार्म का डिसोल्यूशन हो गया, माने कोई पार्टनरशिप फार्म है वो डिसॉल्व हो गया, तो भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. यानी क्लोजर में अगर बिजनेस क्लोज कर दे रहे हो या बिजनेस फार्म का डिसॉल्व हो जा रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अगर टैक्स पेयर का डेथ हो गया तब क्या होगा, तब कोई टैक्सेबल नहीं होगा. इट इज नॉट टैक्सेबल. अगर टैक्स पेयर का डेथ हो गया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. क्लियर, यहां बच जाओगे. या फिर HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया, माने तुम जो टी, कॉफी और रबर का जो बिजनेस कर रहे हो वो HUF बोल के बिजनेस कर रहे हो और उसका पार्टीशन अगर हो गया तो भी टैक्सेबल नहीं होगा. इट विल बी नॉट टैक्सेबल. सेकंड लास्ट कंडीशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. अगर कंपनी लिक्विडेट हो गया, माने कंपनी डिसॉल्व हो गया, लिक्विडेट हो गया, तभी भी टैक्सेबल नहीं होगा. यानी ये 2 केस में टैक्सेबल होगा और बाकी केस में टैक्सेबल नहीं होगा.
क्लियर, यानी अगर कोई अमाउंट विड्रॉन करते हो आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोजर के बाद, तो अगर तुम्हारा बिजनेस क्लोज होता है तो टैक्सेबल है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो भी टैक्सेबल है, लेकिन अगर टैक्स पेयर का डेथ हो जाता है तो टैक्सेबल नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन होता है तो टैक्सेबल नहीं है, और कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो टैक्सेबल नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है देख लो, द अमाउंट विड्रॉन सच shall be taxable under the head profit and gains of business and profession as if the business is continued or the firm had not been dissolved। माने ये कहाँ पर किस हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो बंद हो गया नहीं, तो ये तुम्हारा बिजनेस पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। इट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी बिकॉज इट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी, ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर, इट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी। Next, it is not taxable even though the amount has not been utilized for any purpose specified in the scheme। ये तीन केस के लिए क्या हो गया, ये तीन केस के लिए क्या हो गया, तुम अमाउंट तो विड्रॉ किए लेकिन उसका पर्पस पे तो यूज नहीं हुआ तो भी टैक्सेबल नहीं हो रहा। लेकिन ये दो केस में अगर अमाउंट विड्रॉ किए और उसका पर्पस तो अब रहा नहीं क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो क्लोज हो गया, तो भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा पीजीबीपी के हेड में। यू हैव टू गिव द टैक्स, माने जितना अमाउंट है विड्रॉ हुआ है स्पेशल अकाउंट से वो पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उसको हम लोग पीजीबीपी के हेड से ही लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट्स। अगर तुम उस स्पेशल अकाउंट से प्लांट मशीनरी या कोई नया एसेट्स खरीद रहे हो, उस स्कीम में ज्यादातर एसेट्स के बारे में बोला रहेगा। अगर कोई एसेट्स खरीद रहे हो तो इफ एनी एसेट्स एक्वायर्ड एज पर द स्कीम then such assets cannot be sold or transferred within 8 years from the end of the previous year in which it was acquired। माने प्रीवियस ईयर का एंड से 8 साल तक तुम उस एसेट्स को या तो ट्रांसफर या सोल्ड नहीं कर सकते हो। If such assets is sold or otherwise transferred, then such part of the cost of such assets is retailable to the deduction allowed earlier under this section will be treated as profit। अगर तुम कोई एसेट्स को बेच दिए 8 साल के अंदर में या ट्रांसफर कर दिए तो जितना उसका कॉस्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जितना उसका कॉस्ट है वो तुम्हारा प्रॉफिट बोला जाएगा इस सेक्शन के तहत। यानी ये भी याद रखना, अगर स्पेशल अकाउंट से कोई पैसा निकाल के अगर तुम कोई प्लांट मशीनरी या कोई एसेट्स खरीद रहे हो तो वो एसेट्स को तुम 8 साल तक बिक्री नहीं कर सकते, 8 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर 8 साल के अंदर में ट्रांसफर कर दिए, इफ यू हैव डन इट देन यू हैव टू पे द कॉस्ट एज प्रॉफिट। तो अब तुम्हारा कॉस्ट को प्रॉफिट माना जाएगा और उस प्रॉफिट पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट, तुमको उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स का रेस्ट्रिक्शन पे, ये सेल पे एसेट्स का रेस्ट्रिक्शन था। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसमें सबसे लास्ट जो तुम लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, बहुत स्टूडेंट लोग इसको भूल जाता है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम बोलने का मतलब है अगर तुम्हारा टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 40% तुम्हारा टैक्सेबल इनकम होगा। ठीक है, 40% ऑफ इनकम ये टैक्सेबल इनकम होता है। 60% माने, क्योंकि टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एग्रो इनकम भी होता है, एग्रो इनकम इज ऑल्सो देयर and non-agro income is also there। agriculture income, agro माने agriculture income, okay, agriculture income and non-agriculture। agriculture income को बोलते हैं 60% और non-agriculture को 40%, यानी 40% ही तुम्हारा टैक्सेबल होगा टी के केस में। कॉफी के केस में क्या होगा, 25% और 40%। माने इफ कॉफी इज क्योर्ड और रोस्टेड, ये एक केस है, और एक इफ कॉफी इज नॉट क्योर्ड और रोस्टेड तब 45 और 25% होता है, 40 और 25। और रबर के केस में क्या होगा, 35% होता है, 35%, 65% और 35%। ओके, 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो इसी तरह से तुमको यानी टोटल इनकम निकालने के बाद भी तुमको उसका 40% पे ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 60% तो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, सेक्शन में एग्जेम्प्ट है तो इसलिए हमको टैक्स देना नहीं है, तो 40% पे ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर टी ग्रोइंग है, अगर कॉफी भी है तो 30% है, लेकिन अगर रोस्टेड नहीं है तो 25% है। और ग्रोइंग रबर के ऊपर में कितना है, 35% तुमको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 35% ही एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज द फाइनल
and this is the last things which I have to discuss about section 33AB. 33AB में यही सब चीज डिस्कस करना था। फिर एक बार गेस्ट आइडिया में बता देते हैं। 33AB is applicable for tea, coffee and rubber industries। ठीक है, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सम कंडीशंस आर देयर। पहला कंडीशन है तुमको स्पेशल अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, या तो नाबार्ड या कोई स्पेशल अकाउंट विच इज प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रूल्स ऑफ टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या, टाइम ऑफ डिपॉजिट 6 महीने के अंदर, जिस ईयर में प्रीवियस एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के 6 महीने के अंदर, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इसके अंदर में तुमको ये पैसा जमा कर देना पड़ेगा। और थर्ड है यू मस्ट डू योर अकाउंट्स, तुमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्म 3AC का रिपोर्ट 1 महीने ड्यू डेट से पहले सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, इसके बाद वो जो अमाउंट है उसको तुम विड्रॉन कर सकते हो और उसको यूटिलाइज करोगे एज पर द स्कीम, उस अमाउंट को यूटिलाइज करोगे एज पर द स्कीम। तो अगर उस अमाउंट से तुम कोई एसेट्स खरीदते हो तो ऑफिस एसेट्स, ऑफिस प्रीमिसेस के लिए कोई एसेट्स खरीद रहे हो, या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए कोई एसेट्स, वर्कर लोग का रेसिडेंट है या डायरेक्टर का रेसिडेंट है, या गेस्ट हाउस के लिए कोई एसेट्स खरीद रहे हो, तो उस पर तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी वो स्पेशल पर्पस नहीं माना जाएगा, माने वो यूटिलाइज नहीं हुआ, मिस यूटिलाइज हो गया। अगर कोई ऑफिस अप्लायंसेस के लिए कर रहे हो तो वो भी मिस यूटिलाइज हो गया, वो भी माना नहीं जाएगा, मिस यूटिलाइज कहलाएगा। और या कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल है। और क्या कर सकते हो, अगर तुम कोई एसेट्स पे खरीद रहे हो जिस पर तुमको 100% डेप्रिसिएशन मिल रहा है, या यू विल गेट 100% डिडक्शन, देन इट विल बी नॉट कम अंडर दिस स्पेशल पर्पस। ओके, दूसरा क्या है, अगर शेड्यूल 11 ऑफ द एक्ट के लिए खरीद रहे हो, उसमें जो गुड्स स्पेसिफाइड है उसके लिए कोई प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो, तो तुमको ये डिडक्शन यानी ये स्पेशल अकाउंट का पर्पस पे फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब जो अमाउंट विड्रॉन कियो, वॉट एवर अमाउंट यू हैव विड्रॉन, इट मस्ट बी यूटिलाइज विद इन दैट प्रीवियस ईयर, उसी प्रीवियस ईयर में तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर तुम 10 लाख रुपया निकाले हो और 8 ही लाख यूटिलाइज कर सके तो 2 लाख तुम्हारा अनयूटिलाइज हो गया, तो 2 लाख रुपया के ऊपर में तुमको टैक्स देना पड़ेगा, माने प्रॉफिट, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट अंडर PGBP ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर का वो PGBP कहलाएगा और उस पर टैक्स जो आएगा देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये सब था। और जो ये दिस आर द थिंग्स, ये तुमको जानना था। अब क्या है, बिजनेस अगर क्लोजर हो जाता है देन व्हाट विल हैपन, क्लोजर अगर बिजनेस हो गया तो 2 केस है, बिजनेस के 2 क्लोजर में टैक्सेबल है। अगर तुम्हारा बिजनेस क्लोजर हो गया तो टैक्सेबल होगा, और या तुम्हारा फॉर्म डिसॉल्व हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल है जितना अमाउंट तुम विड्रॉन करते हो। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF, इन केस ऑफ डेट ऑफ टैक्स पेयर, तो तुम्हारा जितना भी अमाउंट तुम विड्रॉन कर रहे हो वो तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा, दो इट इज मिस यूटिलाइज, क्योंकि विड्रॉ करके तुम यूटिलाइज तो कर नहीं सकोगे, तभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। और ये वाला जो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये भी हम तुमको बताएंगे। तो दिस इज द गेस्ट आइडिया ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। 33AB का ये गेस्ट आइडिया है। ओके, नेक्स्ट वी विल डू सेक्शन 35ABB। अब हम लोग सेक्शन 35ABB करेंगे। ओके, 1 minute। Now we will do section 35ABB। 35ABB अब हम लोग करेंगे। ओके, तो 35ABB में क्या बोला जा रहा है, दिस सेक्शन इज फॉर टेलीकॉम लाइसेंस फी। अगर तुम टेलीकॉम लाइसेंस फी ले रहे हो, माने तुमको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए ये एप्लीकेबल है सेक्शन 35ABB। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए, ऑल SSC के लिए, एवरी SSC, माने जो भी SSC हो जो टेलीकॉम लाइसेंस फी एमोटाइज कर रहा हो, माने टेलीफोन लाइसेंस फी खरीदता है, टेलीफोन लाइसेंस फी खरीद के फिर उस पर टेलीफोन सर्विस माने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देता है। तो यानी ऑल SSC माने कोई भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, व्हाटएवर इट में भी हो सकता है। इसलिए ये सभी SSC के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन है इसमें भी, व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, SSC हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एनी राइट, माने SSC टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का राइट को एक्वायर करने के लिए कोई खर्चा किया, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। माने जैसे तुम टेलीकम्युनिकेशन का राइट एक्वायर करोगे ना, तो तुमको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया देना पड़ता है, वो 10 साल के लिए यूज होगा, माने 10 साल के लिए तुमको लाइसेंस मिल जाएगा, 10 साल के बाद फिर वापस रिन्यू कराओगे तो पैसा लगेगा, तो वो जो 1 करोड़ रुपया जो दिए हो वही तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर हैज बीन एक्चुअली मेड,
माने उसका पेमेंट हो गया हो। अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो ये डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। तुमको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, माने तुम एमोटाइज नहीं कर सकते। एमोटाइज माने ही होता क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो खर्चा नहीं है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का एमोटाइजेशन पार्ट जो भी है वो पीएल में हिट कर लोगे, यानी खर्चा ले सकते हो। तो कौन सा खर्चा ले सकोगे, पहला बात जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हो वो, लेकिन वो पेमेंट होना पड़ेगा, इट मस्ट बी पेड। अगर पेड नहीं हुआ रहेगा तो तुमको वो डिडक्शन यानी 35A नहीं मिलेगा। ओके, इसमें क्या बोला, सच एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई बात नहीं है, कमेंसमेंट बिजनेस चालू करने से पहले भी हो सकता है वो खर्चा हो गया हो, और या बिजनेस करने के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी तुम लाइसेंस लेके वो स्टार्ट किए हो, तो दोनों में ही मिलेगा ये डिडक्शन। ये एक्सपेंडिचर दोनों में भी हो सकता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई करोगे फॉर टेलीकॉम लाइसेंस फी शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 35A कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो वो नहीं है, वो तुमको 37(1) में डिडक्शन मिल जाएगा, दैट यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। 37 सबसेक्शन 1 के अंदर में वो डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का सभी डिडक्शन हम लोग 37 में क्लेम करते हैं अंडर PGBP, तो वहां पर हम क्लेम कर लेंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन के लिए हमको 35ABP फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए और वो पेड होना चाहिए, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट डिडक्शन अंडर ड्यू बेसिस। ओके, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन तुमको मिलेगा। ओके, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड फॉर विच द लाइसेंस रिमेन इन फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर एज अंडर। माने सपोज करो तुमने 10 करोड़ यू हैव पेड 10 lakhs, 10 लाख दिए हो 10 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लाइसेंस के लिए, तुमको हर साल 1 लाख रुपया करके डिडक्शन तब मिल जाएगा। माने जितना साल का तुम्हारा लाइसेंस फोर्स में रहेगा, रिमेन इन फोर्स, उतना साल से उतना अमाउंट को डिवाइड कर दो, तुम्हारा डिडक्शन निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ है क्या, वेयर द लाइसेंस इज पेड बिफोर द कमेंसमेंट। अगर बिजनेस चालू होने से पहले कमेंस कर दिया तो जिस साल तुम बिजनेस स्टार्ट किए उस साल से तुमको डिडक्शन मिलेगा, और उतना लाइफ के लिए मिलेगा, उतना नंबर ऑफ लाइफ जो बचा रहेगा वो मिलेगा। क्लियर? मैंने बोलने का मतलब है, सपोज करो बिजनेस तुम लाइसेंस फी पेड कर दियो 2010 में 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, 2010 में 10 लाख रुपए दे दियो, कितना लाइफ है उसका, 10 ईयर। लेकिन तुम बिजनेस चालू किए 2012 में, यानी 2 साल बाद, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के अंदर में 2 साल तुम्हारा लैप्स हो गया, तो कितना ईयर बचा हुआ है, 8 साल बचा हुआ। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 जो फिगर आएगा वही तुमको हर साल डिडक्शन मिलेगा, दैट यू विल गेट डिडक्शन। ठीक है, वेयर लाइसेंस इज एक्वायर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कमेंसमेंट के बाद अगर लाइसेंस मिलता है या एनी अदर केस में, तो जिस ईयर में जितना लाइसेंस फी पेड किए हो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, माने जितना साल तुम्हारा बचा है उससे डिवाइड कर देना, उतना ही तुमको डिडक्शन मिलता चालू होगा। तो होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, where such license is sold in full under section 35ABB subsection 2 and 3, अगर वो लाइसेंस तुम क्या किए, सोल्ड कर दियो, अगर हो सकता है ना बीच में खरीदे उसके बाद तुम्हारा चला नहीं, या व्हाटएवर इट मे बी, व्हाटएवर मे बी द प्रॉब्लम, तुम उसको सोल्ड कर दिए, या तो फुल लाइसेंस सोल्ड कर दिए या फिर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड कर दिए, तो लॉस ऑन सेल शैल बी डिडक्टेबल एज बिजनेस लॉस। अगर तुमको सेल करके लॉस होता है तो वो बिजनेस लॉस कहलाएगा और तुम उसका डिडक्शन ले सकते हो, यू कैन क्लेम द डिडक्शन, तुम उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको प्रॉफिट होता है, इफ यू हैव एनी प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन, माने जितना तुम डिडक्शन लियो उतना तुमको मिलेगा बिजनेस इनकम बोल के, दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, लॉस होगा तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर तुमको प्रॉफिट हुआ तो तुम जितना डिडक्शन क्लेम किए हो उसके ऊपर में उतना तुम्हारा बिजनेस इनकम कहलाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। जितना तुमको लॉस हुआ वो तुम्हारा बिजनेस इनकम कहलाएगा, दैट शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन कैसे होगा, कैपिटल गेन जैसे हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, जो सेल्स कंसिडरेशन है उससे ओरिजिनल कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो तुम्हारा कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 45, यानी सेल्स कंसिडरेशन से ओरिजिनल कॉस्ट को माइनस करोगे, जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, उसको हम लोग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 में टैक्सेबल करेंगे। तो होप इट इज क्लियर टू यू।